Mr. Tilak, I have news for you. Mr. Gopali has put forward a proposal for constitutional reform. I agree with it. We all want reforms, but I refuse to wait for the British to initiate it. We have to force our demands to their logical conclusion. But you must come back to Congress. The split hasn't benefited anyone else but the British. I was always for the unity of the Congress. But as long as only the moderates have the right to elect the representatives, rejoining the Congress would be futile. I only needed your consent. I will put forward a proposal to the Madras Congress that will allow all the delegates a vote. Well, if that happens, we will rejoin the Congress. All of us belonging to Rashtriya Sabha have consulted with our people. And whatever decision we take here will be acceptable to all of us. But madam, have you talked to Sir Firoz Shah Mehta? No, I have not talked to him, nor have I been authorized. I am acting in the interest of our country. Then why are you wasting your time here, madam? Till Sir Firoz Shah Mehta consents, nothing will happen. Well, if that's what you think. एनी बेसेंट अपनी राह गई और उन्होंने अपने प्रस्ताव मद्रास कांग्रेस में पेश किए। वहां उनकी निराशा हुई, प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। अगले वर्ष बंबई कांग्रेस में उन्होंने फिर से कोशिश की और इस बार वे कामयाब हुई। मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय पक्ष दोनों अब कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। फिर भी होम रूल के मामले में जो आनाकानी चल रही थी, उससे एनी बेसेंट को बेचैन कर रखा था। Welcome, welcome, Miss Besant. Please come. I have been waiting for you. I hope the journey was not tiring. No. Please sit. Let me first congratulate you. Your efforts seem to have been finally paid. Now I will declare publicly that the Nationalist Party will join the Congress next year. Another significance of the Bombay Congress was that we were able to focus on the attainment of self-governance. Yes, I agree with you. What Congress needs now is a charismatic leadership, a rallying point, and of course, a war cry. We're not short of leaders. And the rallying point is the United Front. Which has to include the Muslim League. We have to accommodate the Muslim League, even at the cost of some opposition from within. And the war cry would be Home rule. Yes, but in the interest of the unity of the Congress, we may have to tone down our pitch for the home rule. But I am impatient. I will wait for Congress to adopt its home rule proposal. But if it is too slow to come through, then I will start a separate home rule league. I will go my own way. I don't think we need to be impatient to that extent. We shall have to wait to steer the Congress in a right direction. And by that time, if we have a strong Home Rule League movement, the Congress will have to accept it. No two ways about it. Mrs. Besant, I strongly feel that jointly we would be able to achieve our respective goals. I too should be able to convince people on my side.
But my impression is that some of your people don't like me. The feeling of dislike is mutual on both sides and for both of us. Well, in that case, we can coordinate with each other. We shall both form Home Rule League in our respective provinces and work together on a national level. होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक जी ने स्वराज का प्रचार करने के लिए जगह जगह दौरे शुरू किए। अपने भाषणों में तिलक जी ने स्पष्ट किया कि स्वराज प्राप्ति के लिए किसी भी नेता से अपने मतभेद भुलाकर समझौता करने के लिए वे तैयार हैं। स्वराज यानी स्वशासन, करोड़ों हिंदुस्तानियों की तकदीर का फैसला करने का हक सिर्फ उन्हें ही हो सकता है, सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही हो सकता है। हजारों मील दूरी पर बसे हुए ब्रिटिशों को नहीं। ये स्वराज आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था और गांव, तहसील, जिला, राज्य, हर स्तर पर प्रशासन का अधिकार भारतीयों को मिले, यही उस आंदोलन का उद्देश्य था। हमारे आपके बीच जिस संपर्क को मंडाले की 6 साल की सजा ने तोड़ दिया था, वो एक बार फिर से कायम हो गया है। 1914 का यह साल एक अहम साल है। मेरी कई वरिष्ठ राजनेताओं से बात हुई है, जिनमें एनी बेसेंट भी शामिल हैं, और मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि स्वराज्य की पुकार सिर्फ मेरी पुकार नहीं, वो सब नेताओं की पुकार है, भारत के जन जन की पुकार है। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेज हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने शत्रु से किसी तरह का गलत फायदा नहीं उठाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि वो हमारे हक और अधिकारों को पहचाने और उन्हें वो दर्जा और सम्मान दें जो उन्हें मिलना चाहिए। आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कल मैं लखनऊ जा रहा हूं। 1916 लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष नरमपंथीय थे, इसलिए लखनऊ के नरमपंथियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि तिलक जी का महत्व न बढ़ पाए, इसलिए उन्हें चुपचाप गाड़ी से उतारना, कार में बैठाना और सुनसान सड़क से दूर ले जाना। कॉलेज के छात्रों के कानों पर यह भनक पड़ी। उन्हें न नरम पता थे न गरम, वे तो सिर्फ तिलक भक्ति जानते थे। वे सब प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए। तिलक जी जैसे ही उतरे, नरमपंथियों ने उन्हें घेरा और कार में ले जाकर बैठाया। लेकिन रामप्रसाद और एमए का एक छात्र, ये 2 लड़के तुरंत कार के सामने लेट गए। रामप्रसाद तो इस कदर भावना व्याकुल हो गए थे कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं फूट पड़ रहा था। वे सिर्फ रो रहे थे और कह रहे थे, तिलक जी को हम ले जाएंगे, तिलक जी की सवारी हम खींचेंगे। इतने में एक छात्र ने मोटर का टायर ही काट डाला। अब तिलक जी खुद छात्रों को समझाने के लिए नीचे उतरे। तिलक जी जैसे ही नीचे उतरे, रामप्रसाद दौड़ता हुआ एक तांगे के पास गया, उसका घोड़ा निकाला, तांगा खींच कर लाया और तिलक जी को उसमें बैठाया। तिलक जी की उस सवारी को अपना स्पर्श हो, इसलिए लोग भीड़ करने लगे। तिलक जी के माथे पर, शीश पर जो फूल पड़ रहे थे, उसे लोग उठाकर अपनी जेब में रखने लगे। उनके पांव जहां पड़े थे, वहां की चरण धूली लोग मस्तक में लगाते और अपने रुमालों में भरकर घर ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तिलक जी की जैसी सवारी लखनऊ में निकली, अन्य किसी नेता की नहीं निकली। यही रामप्रसाद आगे चलकर महान क्रांतिकारी हुआ और काकोरी षड्यंत्र में अपने साथी अशफाकुल्लाह खान के साथ फांसी पर झूल गया। रामप्रसाद का ये शेर हर भारतीय की जबान पर है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रामप्रसाद समान महान क्रांतिकारी भी तिलक जी की सवारी खींचने में धन्यता मानते। इसी से तिलक कितने महान थे, इसका अंदाजा लग सकता है। लखनऊ कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी लखनऊ समझौता। उस वक्त देश 3 पक्षों में बटा था। कांग्रेस, तिलक जी और उनका गुट तथा मुस्लिम लीग। इससे आंदोलन कमजोर हो रहा था और ब्रिटिशों को उसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा था।
लखनऊ से ये तीनों पक्ष एक साथ आए और स्वराज की मांग के लिए लड़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए। कांग्रेस का यह अधिवेशन उस अध्याय का प्रारंभ है जिसकी समाप्ति स्वराज्य प्राप्ति से होगी। आज हम सब एक हैं और मुस्लिम लीग के साथ हमारे समझौते को एक तरफा समझना गलत होगा, क्योंकि अगर हम अपने को बड़ा समझते हैं और हमारा बहुमत है तो सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी हम हिंदुओं की ही है। और कल को बेशक इस देश का शासन किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के मानने वालों के हाथों में चला जाए, मैं उसे भी स्वीकार करूंगा, पर अंग्रेजों का शासन कभी नहीं स्वीकार करूंगा जो इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। आज इस मंच पर हम सभी का एक साथ होना इस बात का सबूत है कि हमारा संघर्ष परिपक्व हो चुका है और अब समय आ गया है कि हमारे भविष्य का निर्णय हमारे ही हाथों में हो। आप सबके प्यार और विश्वास के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। इस नूतन मंत्र ने देश के स्वाधीनता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। अगले 30 वर्षों तक प्रत्येक भारतीय नेता इस मंत्र का बार बार उच्चारण करने वाला था। तिलक जी एक इतिहास रच रहे थे, लेकिन उसके लिए वे जो कष्ट उठा रहे थे उसके दुष्परिणाम उनके शरीर पर दिखाई देने लगे। मधुमेह के रोगी तो वे थे ही, मंडाले के कारावास ने उन्हें अधिक जर्जर और खोखला कर दिया। तिलक जी, ये किताब आपने देखी है, द इंडियन अनरेस्ट? आप जब मंडाले में थे तब यह प्रकाशित हुई। नहीं तो इस पुस्तक में आपको भारत में अशांति का जनक कहा गया है। किसने लिखी है पुस्तक? वैलेंटाइन चिरोल ने। उसने आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी और गलत बातें लिखी है। लिखा है आप हिंसा को समर्थन करते हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद करते हैं। बहुत से झूठे आरोप लगाए उसने आप पर। यह किताब उन्हीं के लेखों का संकलन है। वैलेंटाइन चिरोल, जो कभी बंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता हुआ करते थे। जी हाँ, वही। जरा देखूं तो। आप, हाँ, यहां से। Tilak can be truly called as the father of Indian unrest. This one leader who came to ये तो एक बड़ा अच्छा मौका है। जी, मैं समझा नहीं। समय आने पर समझ जाएंगे। अभी हमें होम रूल लीग के प्रचार पर ध्यान देना है। होम रूल लीग के अपने दौरे और सभाओं में व्यस्त होने के बावजूद तिलक जी दूसरी ओर चिरोल केस की तैयारी कर रहे थे। तिलक जी उस केस को लंदन में लड़ने वाले थे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मानहानि का प्रश्न नहीं था। उस बहाने लंदन जाकर भारतीय आंदोलन का व्यापक प्रसार करने का और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का सुनहरा मौका था। लंदन की प्रमुख कानूनी सलाहकार कंपनी लिटिल एंड सन्स ने उनके केस के सिलसिले में पत्र व्यवहार शुरू किया। लंदन से हमारे सॉलिसिटर ने मुकदमे के खर्चे का ब्यौरा भेजा है। जरा पढ़िए तो। जी, आपके लंदन आने जाने की यात्रा की गारंटी के लिए 5,000 पाउंड, 1,500 पाउंड सॉलिसिटर्स की फीस, 1,500 पाउंड हमारे बैरिस्टर
सर साइमन की प्रारंभिक फीस, 1000 पाउंड उनके असिस्टेंट की फीस, 4000 पाउंड कोर्ट का खर्चा, 200 पाउंड क्लर्क का खर्चा वगैरह वगैरह। लेकिन इतने सारे पैसे कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही करंदीकर साहब, क्योंकि ये खर्चे चिरोल के मुकदमे के लिए नहीं हैं, ये स्वतंत्रता के हमारे संघर्ष के लिए हैं। मुझे विदेश जाने का कोई शौक नहीं, क्योंकि स्वराज की लड़ाई का निर्णय तो बादशाह सरकार को ही लेना है, और प्रिवी काउंसिल में मेरे बोलने के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं है। तो स्वराज का प्रचार के लिए इस मुकदमे से बढ़कर अच्छा बहाना और क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, और आप वहां से जो भी कुछ कहेंगे सारी दुनिया सुनेगी। लेकिन खर्चा तो काफी लगता है। करंदीकर जी, आप मेरे घर के सारे कागजात तैयार रखिए। इस मुकदमे के लिए अगर मुझे अपने इस घर, इस गायकवाड़ वाड़ा को भी गिरवी रखना पड़ा तो मुझे कोई परवाह नहीं। वासु काका जोशी की पैसों के लिए एक साहूकार से बात हो चुकी है, मैं ये घर गिरवी रख रहा हूं। मैं बलवंत गंगाधर तिलक, धर्म हिंदू, उम्र 63 वर्ष, निवास गायकवाड़ वाड़ा पूना, जो अब केसरी वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इस शपथ पर लिखता हूं कि मैं और मैं ही एकमात्र इस समस्त जायदाद और घर का मालिक हूं, और मालिक होने की हैसियत से मैं अपना यह घर गिरवी रख रहा हूं। हर दिन के साथ हमारा संघर्ष परिपक्व होता जा रहा है और सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जय गोपाल जी। नमस्कार, आइए, मुझे आप ही का इंतजार था। जी। ये रहे मेरे घर के कागजात, मैं इन्हें आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। तिलक जी, ये घर आपके नाम पे रहे ना? जी हाँ, ये घर मेरे ही नाम पर है। जी ठीक। गिन के लीजिए, और हाँ, इस पे आपके दस्तखत। आपके आज्ञा है। नमस्कार। तिलक जी का अधिकतर समय अब चिरोल केस की तैयारी में बीत रहा था। दिन रात एक एक करके वे प्रिवी काउंसिल में होने वाली लड़ाई के लिए सामग्री जुटा रहे थे। दूसरी ओर कुछ वर्ष पहले बोए गए होमरूल के बीज ने एक घने डेरेदार वृक्ष का रूप धारण किया था। पूरे देश में चल रहे आंदोलन की दखल आखिर सरकार को लेनी ही पड़ी, और उसके जवाब में उसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को देश के सामने पेश किया। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आ गई है। इसमें सरकार कहती है पहले वो हमारी योग्यता आंकेगी और उसके अनुसार समय समय पर वो शासन व्यवस्था में परिवर्तन करेगी। ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने हिंदुस्तानियों की निराशा की। रिपोर्ट के जरिए सरकार ने जिस तरह भारतीय बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की अवहेलना की थी, उससे तिलक जी असंतुष्ट थे। एनी बेसेंट के साथ अगली मुलाकात में दोनों ने इस मुद्दे को हल करने की रणनीति बना ली। It's unworthy of Britain to offer the Montagu scheme. No doubt
it will be equally unworthy for India to accept this. It's a clever piece of literature. One can't reject it offhand. You mean to say that you accept everything they offer? In principle, yes. Montague has recognized our demand of self-governance. He wants to offer it in installments. I do not agree. I want it today. There lies British intelligence. They want a progressive process, depending on when they see that India can take governmental responsibility for itself. I feel that our moderate brethren will also feel the same way. They will agree to anything that is offered. As far as I am concerned, I would like to reject this installment plan. It deserves nothing better. If we reject, it may harm our recently forged unity. And after all your efforts to see an united Congress will go in vain. It's a choice between devil and the deep sea. You mean to say that our rejection of the peace is just another piece of clever literature? Yes, we may not reject it outright, but surely express our regret, for it falls short of our expectations. We also have to offer a constructive scheme of things that implies exactly what we want. We want self-government with unfettered financial, administrative, and legislative powers, not to be overruled by the whims and the fancies of the viceroys. All under the authority of the crown. तिलक जी के लंदन जाने का इससे उचित समय और कोई नहीं हो सकता था। ब्रिटिश सरकार का बेचैन होना बेवजह नहीं था। इंस्पेक्टर सदावर्ते को तिलक जी से फिर से मुलाकात करनी पड़ी। कलेक्टर साहब ने संदेश भेजा है कि तिलक जी एक शर्त पर लंदन जा सकते हैं कि वो वहां किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में भाग ना लें। जी हाँ, वैसे तिलक जी लंदन सिर्फ चिरोल के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए ही जा रहे हैं। होम रूल आंदोलन और चिरोल केस के काम करते करते तिलक जी का शरीर कण कण टूट रहा था। फिर भी बढ़ती बीमारी, ढलती उम्र और महायुद्ध का खतरा मोल लेकर भी वे लंबी समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। वे एडन पहुंचे जहां एक तार उनका इंतजार कर रहा था। वे सर्वानुमति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नियति का क्या अजीब खेल है देखिए कि तिलक भक्त जिस मौके की तलाश में सालों से थे वो आया तब तिलक जी हिंदुस्तान से हजारों मील दूर लंदन यात्रा पर थे। एडन से निकलकर 30 अक्टूबर 1918 को
तिलक जी लंदन पहुंचे। उनके पुराने साथी बैरिस्टर जोसेफ बैप्टिस्टा उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। बैप्टिस्टा जी, मानना पड़ेगा आपने मुझे इस लिबास में देखते ही पहचान लिया। पहचानता कैसे नहीं। कितनी शांति है, वाह, कितना स्वच्छ वातावरण। आपने अपने लिए बड़ी खूबसूरत जगह चुनी है बैप्टिस्टा जी। वैसे इतने प्रयासों के बाद आखिर आप लंदन पहुंच ही गए, स्वागत है आपका। वो तो ठीक है, लेकिन आप वासु काका और करिंदगर साहब को नहीं पहचान पाए। आप सभी का स्वागत है। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? हमारी तकलीफ की छोड़िए, लेट मी फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। इसलिए लंदन में स्वराज्य के प्रचार की नींव डालने के लिए हमारी शुभकामनाएं। सरकार ने यहां आपके ऊपर किसी भी तरह के राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हाँ, हम लोग चाहें तो उस प्रतिबंध को हटाने के लिए अपील कर सकते हैं। प्रिवी काउंसिल में बोलने पर तो प्रतिबंध नहीं, और चिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर करना तो बस लंदन तक आने का एक रास्ता भर था। मैं स्वराज्य की यह लड़ाई यहां अंग्रेजों के घर में आकर लड़ना चाहता था। तिलक जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, 4 साल पहले मंडाले से छूटने के बाद आपने कहा था कि मंडाले मेरे लिए रात भर की नींद थी। और समय गवाह है, पिछले 4 साल में स्वराज के संघर्ष को आपने सोने नहीं दिया, और न ही ब्रिटिश सरकार को। सच तो यह है बैप्टिस्टा जी कि स्वराज की यह लड़ाई मैंने यह सोचकर शुरू नहीं की कि यह कोई महान कार्य है। यह मेरी एक मानसिक अवस्था है, मेरे हृदय की पुकार, जो मुझे इस संघर्ष में कभी थकने नहीं देगी, मैं चाहूं तो भी नहीं। अरे आप लोग किस सोच में पड़ गए? वासु काका, आपको कुछ चीजें खरीदनी थी ना? जाइए बैप्टिस्टा जी, इन्हें थोड़ा लंदन भी घुमा दीजिए। करदिकर साहब, आप भी हो आइए इनके साथ। लेकिन आप डोंट वरी अबाउट मी, मुझे कुछ पेपर्स पढ़ने हैं। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आइए।